ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘ 1998 সাল থেকে রেলওয়ে পণ্য গুদামে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছে। একাধিকবার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পর কয়েক দফা দাবি পেশ করা হয় শ্রম মন্ত্রণালয়, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং রেলওয়ে মন্ত্রকের কাছে শ্রমিক সংগঠনের দাবি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়। শ্রমিকদের দাবি দেওয়া বর্তমানে বাস্তবের মুখে বলে সংগঠনের জাতীয় ইনচার্জ মনোরঞ্জন কুমার জানান। বৃহস্পতিবার নৈহাটি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘের পদাধিকারী নির্বাচন সম্মেলনে তিনি উপস্থিত থেকে ইস্টার্ন জোন কলকাতা সহ বেশ কিছু পদাধিকারীর হাতে পঞ্জীকরণের মানপত্র তুলে দেন, যেন আগামী দিনে সকল শ্রমিকদের পঞ্জীকরণের পাশাপাশি তাদের নাম লিস্ট করা যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য আধিকারিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন জোন কলকাতা স্টেট প্রেসিডেন্ট কাশীনাথ গায়েন সহ ছিলেন শানু কর্মকার, হরেরাম সিং, হীরা পাসওয়ান সহ প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। মালগুদাম শ্রমিক সংঘের আজকের যে এখানে নির্বাচনী সম্মেলন যেটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইস্টার্ন জোন কলকাতার পক্ষ থেকে গুডসেট ডিভিশন এবং জোন এবং স্টেট কমিটি গঠন হচ্ছে। কারণ এই পদাধিকারীদের তাদের সার্টিফিকেট দিয়ে প্রত্যেকের ডিপার্টমেন্টে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় গুডসেটে ডিভিশন জোনে প্রত্যেকের সার্টিফিকেশন করিয়ে যে আমাদের এই রিসেন্টলি মানে মার্চ মাসে আমাদের যে টোটাল আমাদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়ে যে ডিমান্ডটা আমাদের ইস্যু হবে, এই ডিমান্ডের মধ্যে আমাদের যে ডিমান্ডগুলো রয়েছে সেইগুলো আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্কারদের মধ্যে আমরা দেবো কীভাবে। এখন টোটাল আমাদের যে ডিমান্ডগুলো রয়েছে, মেডিকেল রয়েছে, আমাদের ইউনিফর্ম, রেলের পাস, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, টয়লেট, বাথরুম, টোটাল 13খানা ডিমান্ড এটার মধ্যে রয়েছে। ওল্ড এজ পেনশন থেকে শুরু করে মিনিমাম মানে সমান কাজ সমান বেতন, টোটাল আমাদের এই রিভিউ বৈঠকে ফাইনালাইজ হয়ে গেলে যে ডিমান্ডগুলো আসবে এই পদাধিকারীরা প্রত্যেকটা গুডসের লেভেলে প্রত্যেকটা ওয়ার্কারের কাছে পৌঁছে দেবে। মানে জোন আসবে, জোনের জায়গা প্ল্যানিং করবে, ডিভিশনের জায়গা, গুডসের জায়গা। এর জন্য আজকে পদাধিকারী নির্বাচন হলো, এদের হাত ধরে টোটাল কাজটা কমপ্লিট হবে। সার্টিফিকেট যাতে দেওয়া হলো তারা কি পুরোটা সাউথ ইস্টার্ন জোনে শুধু ইস্টার্ন জোনের, আজ ইস্টার্ন জোন কলকাতা হয়েছে, আগামী 6 তারিখে সাউথ ইস্টার্ন জোনের এইভাবে আমাদের কার্যকর্তা সম্মেলনের মাধ্যম দিয়ে সেখানে সাংসদরা উপস্থিত থেকে আমাদের সার্টিফিকেটগুলো প্রোভাইড করা হবে। কতজনকে দেওয়া হলো? আজকে টোটাল নিয়ার अबाउट প্রায় 80 থেকে 85 জনকে দেওয়া হয়েছে। सबसे पहले देश के चौथा स्तंभ आप सभी मीडिया बंधु जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के इस कार्यक्रम में आप इन गरीबों की आवाज़ को देश तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ विगत 1998 से रेलवे माल गोदाम में काम कर रहे मजदूरों का पहचान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही थी। 1998 से यह संगठन ने कई बार देश के संसद भवन का घेराव, जेल भरो आंदोलन, सभी तरह के लड़ाई लड़ने का काम किया। उसके बाद जब 2003 की बैठक हुई थी वर्तमान श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी के साथ में, उस कैबिनेट की बैठक में इन रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, परंतु वो देश में लागू नहीं हो पाया। जब ये 2019 में 44 श्रम कानून को संशोधन किया गया, उसमें हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी ने मिलकर उस समय उस श्रम कानून में रेलवे माल गोदाम का जो कोई पहचान नहीं था उसमें उसको जोड़ने का किया गया और भारत सरकार ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को पहचान देने का जिन्होंने काम किया, इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। 23 मार्च 2021 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक, जिसमें रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और श्रम मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें लोकसभा सांसद सब लोग उपस्थित थे। हमने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के संबंधित सभी जो उनकी समस्याएं थी उनको विस्तार पूर्वक वहां रखा और 13 मांग हमने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें श्रम रोजगार मंत्रालय ने संगठन द्वारा रखी गई 13 मांगों को उन्होंने स्वीकृत करने का काम किया और उन्होंने माना कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के साथ वाकई शोषण हो रहा है और आज रेलवे की 70% आमदनी जो माल भाड़ा से आता है उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का है। वो तो पैसेंजर ट्रेन में काम करता है और मालगाड़ी में काम नहीं, पैसेंजर नहीं, ये सिर्फ मालगाड़ी के अंदर जो लोडिंग अनलोडिंग होता है। पूरे देश में लगभग 22 लाख टन माल प्रतिदिन देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम हमारा माल गोदाम के श्रमिकों पर है। आप सभी लोग देखे होंगे कि कोरोना जैसे लॉकडाउन की स्थिति में
पूरा देश में जब सारी व्यवस्था ठप पड़ गई थी तो सिर्फ मालगाड़ी को चलाकर देश में खाद्यान्न सामग्री का आपूर्ति के लिए रखा गया था। उस समय भी हमारा श्रमिक अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के समक्ष किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो, उन्होंने अपने देश के लिए समर्पित होकर के काम किया। और 23 मार्च 2021 को जब हमारी बैठक हुई तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे 13 मांग जो श्रमिकों की मूलभूत सुविधाएं, उनके एक्सीडेंटल, उनके पीएफ की, उनका मेडिकल सुविधा, तमाम जो हमने मांग रखा था उसको स्वीकृत करने का काम किया। कितना अभी आज कितना अभी हुआ है बंगाल में? बंगाल में लगभग माल गोदाम का जो लगभग 60 से 70 हजार की संख्या में काम करते हैं, उसमें से लगभग 80% लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और 20% जो बचा हुआ है वो भी निकट समय जल्द ही हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। आज जो हमारे श्रमिकों के लिए जो सुविधाएं लागू हुआ है उसको उन तक पहुंचाने के लिए हमने अपने संगठन का विस्तार किया है और उसमें प्रदेश स्तर का, जोनल स्तर का, माल गोदाम स्तर का, डिवीजन स्तर का पदाधिकारी को चयनित करने का काम किया है, ताकि हम जब सरकार से जो सुविधाएं मजदूरों के लिए लागू कराएं उसको जल्द से जल्द हमारे सभी पदाधिकारी मिल करके मजदूरों तक पहुंचाने का काम करें, उनको सुचारू तरीके से। महत्वपूर्ण बैठक होना है जिसमें कि मजदूरों का एक तरह से भाग्य उदय होना है। इसके लिए हम सभी पदाधिकारी को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए और अपने अपने जिम्मेवारी को वो अपने सही तरीके से निर्वहन करें, इसके लिए आज कार्यक्रम रख करके उनको निर्वाचित करने का काम किया गया। मार्च 2000 को जो हमारी जो बैठक हुई थी उसमें रेल मंत्रालय के जो पदाधिकारी उपस्थित हुए थे उसमें यह निर्णय लिया गया था कि रेल मंत्री महोदय के साथ पुनः एक बैठक करके और इनका मजदूरी दर सुनिश्चित करके इनको वेतनमान सही प्राप्त हो, उसके लिए बैठक करना है। तो मार्च महीना में जो 14 मार्च को पार्लियामेंट सेशन चल रही है, 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक में, इसके बीच में हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक श्रम मंत्री और रेल मंत्री के साथ हमारे संगठन का होना है, जिसमें इन मजदूरों का वेतनमान सुनिश्चित करके इनको लाभान्वित करना है। और बंगाल से कितना % हुआ है ये थोड़ा बता दीजिए। पंजीकरण यहाँ लगभग 60 हजार के आसपास मजदूरों का हो चुका है। 10-20 हजार जो बचा हुआ है नॉर्थ बंगाल तरफ में, उसका प्रोसेस है। टोटल मजदूर यहाँ लगभग 1 से 1.25 लाख के आसपास के मजदूर हैं हमारे। ऑल ओवर इंडिया का कितना है? यहाँ आज कार्यक्रम हुआ, हमारे सभी पदाधिकारी चयनित किए गए हैं और उनका सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রিয় চিত্র সাথী নিউজ, উত্তর 24 পরগনা।